किस तरह का पंचनामा होने वाला है ये सेकंड पार्ट में? विल स्टार्ट विद नुसरत। इस बार एक्चुअली हमारे सारे कैरेक्टर्स बहुत अलग है फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, बट फैक्ट तो ये है कि हम फिर भी लड़कियां हैं, तो जो हमारी बेसिक ट्रेट्स और हैबिट्स है वो तो सेम ही है, वो नहीं बदल सकते। मतलब करना हमें इवेंचुअली पंचनामा ही है, बट क्योंकि हम अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं, इट्स मोर इंटरेस्टिंग कि अब इस बार और क्या आ सकता है। मतलब ये नहीं था कि पहले पार्ट में सब कुछ हो ही गया, कर ही दिया, इतना कुछ उसने बोल भी दिया, अब क्या बच गया कि आप और करना चाहते हो। मतलब ये इंट्रीगिंग फैक्टर होगा आई थिंक लड़कों के लिए कि और कितना सता सकती है हमें, ये कहाँ से अब और नए मतलब इन्वेंशंस आ गए कि अच्छा इस पे भी प्रॉब्लम, इससे भी प्रॉब्लम, इससे भी प्रॉब्लम। सो वी हैव कम आउट विद, एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज कि फर्स्ट पार्ट में हमारा सेकंड हाफ थोड़ा सा ड्रामा हैवी था, बिकॉज हमने एक्चुअली सीरियस हो गए थे हम। इस बार हमारा सेकंड हाफ बहुत ही ज़्यादा कॉमिकल है। ऐसा नहीं कि कॉमेडी कर रहे हैं हम, बट जो कैरेक्टर्स है वो तो प्यार में है ही और उनको तो टॉर्चर हो ही रहा है, बट जिस तरह से उन्होंने किया है वो इतना फनी है कि उस पर भी आप हंसी रहे हो। सो बिकॉज आई थिंक द रीजन वी आर कॉलिंग इट डबल एंड द रीजन वी आर कॉलिंग इट बोल्डर एंड द रीजन वी आर कॉलिंग इट ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज नाउ वी आर शेमलेसली गोइंग आउट देयर एंड सेइंग हाँ यही करते हैं। हम तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम चलो ठीक है यार लड़की है, चलो कर लो मार लो, जो करना है कर लो। सो या दैट्स व्हाई दिस टाइम इट्स फनियर एंड बिगर एंड बेटर। सुपर। सोनाली? See, she's pretty much said it all when it comes to the film. Now for me, it's different because my characters are very different. That is one basic thing, and they are different as in poles apart, like north and south. I played Riya in the first part where I think I was a bit too negative, you know. So she was a girl who was confident and Riya was glamorous and all of that. But you know, when I was even doing that, I would be like, which girls do that, you know, like have a boyfriend and then go back to the older one and then have two of them together. Oh my god, where are these girls? But then eventually I found out that there are a lot of girls like that. Coming to part 2, my character is so different. I'm playing Supriya, who is nothing like Riya. She's simple, sweet, loves to be in love, loves to give love wholeheartedly, and this is her first boyfriend, Siddharth. And she's not that confident and she's not that glamorous. She's just a regular Delhi girl. So in that basic character, this is too much fun. First of all, casting is not my call, you know. Whatever Love Sir thought was right for the character, he casted accordingly. Coming to my personal opinion, Divendu was a great co-star and I had a good time shooting with him. But as Sonali said, that was my first film too, and she'd still been modeling before she signed the movie Pyar Ka Panchnama. I was handpicked from home. Like I was totally alienated from this entire procedure of how filmmaking is and how industry works, because I'm not even from Bombay, I was from Delhi. So I got the movie while I was there, and that's when I shifted and started shooting the movie. So the whole process was so new to me that I was just getting you know, familiar with it. I was learning during the process. Panchnama 2 is definitely by far it's like just my second movie but yeah, it's a better experience because I'm working with the same team, and to be doing my second film with the same team, it obviously makes me more comfortable. Since Panchnama 1 was more of a learning experience, Panchnama 2 was you know, was more of the application to what I'd learned in the first one. So the entire team, the girls are the same, the team's the same, and Omkar, I think so it has to do a little to the track that I'm playing in the movie, since he is my love interest. So we had a lot of moments during workshops, during readings, where we could, you know, we had to break the ice and we had to really get familiar to each other to actually be playing that on screen. With Divendu, my track was that he was just a friend and I was just keeping him as a friend, and you know, so that's the reason maybe I was not too close to Divendu. But with Omkar, I got more of those moments where, you know, we could really sit and have a chat about each other, and you know, we could talk, and we fought on the sets. We've had arguments during readings, and I think so fights and arguments, it just makes the whole relation, but the whole like your friendship grows, it makes it grow more. So yeah, I think so all these things I've had it with Omkar. So yeah, I think so I'm more happy to have Omkar. But again, Divendu is a great actor and I have a lot of respect for him. Super. तो फाइनली व्यूअर्स को अपने अपने एक अलग अलग स्टाइल में
अगर आप फिल्म को देखने आए, ऐसा कुछ अगर बोल दे अपने अपने अलग स्टाइल में, व्हाट यू आर डूइंग इन द फिल्म, समथिंग रिलेटेड टू इट, ठीक है, स्टार्ट। I'm going to quote the tagline of the film, which is love is injurious to health. And I think हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि प्यार करना एक आदत बन गई है हम सब में, वो एक बुरी आदत बन गई है, ये हम कह रहे हैं। तो ये कैसे इंजूरियस है आपकी एकदम अच्छी खासी हेल्थ को, ये देखने आप 16 अक्टूबर को जरूर आइए। I will just say that as girls हमने लड़कों को बहुत टॉर्चर किया है और हमें बहुत मज़ा आया है। So you should just come and watch that how we have done the पंचनामा, लड़कों का पंचनामा, प्यार का पंचनामा, 16th October. This is for all those people, all those people who actually wanted to have Pyar Ka Panchnama 2. It was a much awaited sequel. So please come, give business to our film so we can make more and more awesome movies for you to keep you entertained. So yeah, come encourage us because we made this film for you. Super, thank you so much. Thank you. Come. Keep coming. इसके पहले लड़कियां आई थी, उन्होंने कहा कि बहुत बजाया है फिल्म में आप तीनों को, क्यों ऐसे? बताइए जनाब। उनका काम ही है, बजाती ही रहती हैं और उनका काम तो है नहीं। मूवी में भी देखा ही आपने कैसे बजा रही है जी। तो यू नो गर्ल्स ऑलवेज राइट, तो वो तो यही बोलेंगी। और देखिए हमेशा मतलब प्यार का पंचनामा 1 में भी आपने देखा होगा कैसे वो बजा रही थी, एंड बैंड कितनी बजा रही थी हमारी, क्या हार्शर कर दिया था। प्यार का पंचनामा 2 में भी इतना लगी पड़ी है, आप हालत से देख रहे होंगे हमारी क्या हालत हो रही है, बिल्कुल बजी पड़ी है। एंड लेकिन मज़ा आता है, एटलीस्ट एक आध बार कहीं ना कहीं तो सच्चाई दिखानी चाहिए ना। तो वी आर शोइंग द एग्जैक्ट थिंग जो ये लड़कियां करती हैं, एंड for the first time in the history of Bollywood, actually the second time, Pyar Ka Panchnama and Pyar Ka Panchnama 2, we are telling you the truth, the real side. We are showing you the real side. मतलब रियलिटी से कोई दूर थोड़ी है यार, आदमी की तो बचती है रिलेशनशिप में, सबकी बचती है, आपकी भी कभी ना कभी बजी है, हमारी भी बजी है, तो आई थिंक इट्स वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, ये जो प्यार का पंचनामा है, ये टाइटल जो है, आप तीनों इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? बहुत बड़ा है लेकिन आई थिंक बहुत इत्तेफाक रखते हैं यार, मतलब हर आई एम श्योर आप भी सेफ रखते होंगे, अभी कैमरा के पीछे ऐसे कर रहे हैं ऑब्वियसली। आई मीन क्योंकि हर लड़का इसलिए रिलेट करता है क्योंकि एक ना एक बार तो वो पक्की बात है गुजरा ही होगा ऐसे रिलेशनशिप में, जहाँ बाय द एंड ऑफ इट आपको लगा होगा कि यार ये मतलब क्या है, मतलब मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता, और उसने पंचनामा उस लड़की का किया होगा, तो वो एक है ही चीज, वो तो है ही यार। हाँ मतलब ये बहुत रिलेट किए नहीं हम लोग काफ़ी रिलेट किए हैं, काफ़ी पंचनामा हो चुका है, हो रहा है, एंड इत्तेफाक रखने वाली बात ही क्या है, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। इतना ज़्यादा जो ये लोग अत्याचार करती हैं लड़कों पे वो काफ़ी दिखता है, और इस फिल्म में दिखा रहे हैं वाली साइड, एंड आई थिंक लड़के बहुत रिलेट करते हैं इस फिल्म से। लड़कियां भी करती हैं, अंदर ही अंदर छुपा के रखती हैं, बोलती नहीं है, वो बस ये बोलती है कि मेरी कोई एक ऐसी फ्रेंड है जो ऐसा करती है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखेगी, अपना नाम डालेंगी नहीं, और उनको पता ही है कि हर दिन हर घंटा, बस हर लड़का जो बेचारा देख रहा है उसको भी पता है कि हर घंटे मेरा पंचनामा होगा, हर मैसेज पे पंचनामा होता है। कार्तिक, आप तो फर्स्ट पार्ट में भी जी, तो इसमें क्या डबल पंचनामा हो रहा है आपके साथ? देखिए पार्ट 2 है तो थोड़ा सा पंचनामा 1 में आई डोंट नो कितना ज़्यादा लगा था लोगों को, कितना कम लगा था, लेकिन ये है कि रिलेट सबने किया था, तो जितना था वो एप्ट था सबके लिए। इस वाली में और ज़्यादा बजाई रही हैं, और ज़्यादा मार रही हैं, और ज़्यादा लगा रही हैं हमारी, एंड पार्ट 2 में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के रिलेशनशिप्स में होती हैं, काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें हैं, एंड आई मीन हाँ मैं खुद भी एज एन एक्टर भी और पर्सनल लाइफ में भी ऐसे सोचने जाता हूँ तो लगता है कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, तो वो चीज़ एक है, वो प्यार का पंचनामा 2 के साथ, प्यार का पंचनामा 1 के साथ भी एक चीज़ इंटैक्ट थी कि उसकी रिलेटेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि डबल तरीके से इसमें दिखा रहे हैं कि यार हाँ यार इस बार और ज़्यादा फनी, और ज़्यादा रिलेटेबिलिटी होगी, आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ हुआ है, आपके दोस्तों को लगेगा यार ये मेरी वाली भी करती है, तो हाँ वो होने वाला है।
अगर आपकी बात करें ओमकार, तो आप तो बॉलीवुड से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं जी। तो- मैं चाइल्ड सीनियर एक्टर था। तो आपसे इनको कितना कुछ सीखने मिला, या आपने ऐसे कुछ बताया था बॉलीवुड के बारे में, ऐसे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, हम सब एक्चुअली एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, मतलब वो एक नेचुरल प्रोसेस है किसी भी एक्टर का। तो उससे मेरा चाइल्ड एक्टर का होना उससे कोई लेना देना नहीं एक्चुअली, बिकॉज एज एक्टर्स मैं मानता हूँ ये चीज कि जब भी आप दूसरे एक्टर्स के साथ काम करते हो, वो भले ही अच्छे हो बुरे हो, मतलब वॉट एवर इट इज, यू लर्न समथिंग और द अदर फॉर श्योर। यू नो कोई चीज ऐसी होगी जो यू नो कार्तिक में होगी जो मुझे पसंद आएगी कि हाँ यार ये चीज है, कोई चीज ऐसी होगी जो उसको, तो वाइस वर्सा। आई थिंक हम तीनों एक दूसरे से काफी कुछ सीखे, और तीनों ने काफी एक्चुअली मोर देन दैट, हम लोग अपना दुखड़ा एक्चुअली वैन में बहुत रोते थे कई बार, काफी चीजों को लेकर, एक्चुअली पर्सनल लाइफ को लेकर, कभी कोई हमारी मतलब यू नो प्रॉब्लम चल रही हो, या यू नो पैसों की प्रॉब्लम चल रही हो, कभी कोई और प्रॉब्लम चल रही हो, तो कभी इसकी गाड़ी खराब हो गई, उसकी चाबी गुम गई, तो ये चीजें तो यार इट्स बिकॉज इट वाज अ फन फिल्म, दोस्ती की फिल्म थी, सो हाँ मतलब डेफिनेटली बेसिकली पंचनामा करते करते हमें लड़की बना दिया है। हम लड़की बन गए और आपस में थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। एक दूसरे की हेल्प की, एक दूसरे की बहुत मदद की, बट यार दोनों के साथ कैसी केमिस्ट्री थी? कोई बोलने की बात ही नहीं, इनके साथ तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, देख सकते हो मेरा भाई। किस पर करना ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन हम करते हैं, कुछ बोलना ही नहीं है। हम इतने मतलब हमें कोई डायलॉग भी मिल जाए, सीन चल रहा है, उससे पहले भी मैंने भाई को एक लुक दी, मेरे भाई ने मुझे लुक दी, उधर ही हंस पड़े। और वो अलग है कि लफ्सर प्रसाद दे देते हैं हमें, उसके बाद हम उसे डांस को प्रसाद बोलते हैं, क्योंकि कभी ना कभी पड़ती है हमें, तो डेफिनेटली आप जब गलती करोगे तो पड़ेगी, तो हाँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। जैसे ये बोल रहा था सनी कि ये कई बार ऐसे होता था कि तीनों के सीन्स हैं बहुत सारे, क्योंकि बॉन्डिंग है, ब्रोमांस है, तो हम तीनों का ये कुछ बोल रहा है, जब हम लोग के क्लोजेस हो गए, तो जब कई बार एक बार हो गया वो इंस्टेंस कि ये बैठा हुआ है, अब इसका क्लोज लग रहा है, हमारा हो गया है काम खत्म, एंड हमें एक बस क्यूज देने, तो अब पता नहीं क्या होता था, वो मोमेंट बनता था कि हम दोनों ना एक दूसरे को अगर गलती से देख लेने, जब इसका ऐसे क्लोज लगा है, और रिएक्शन इसको भी देने, और गलती से मैंने ऐसे सनी को देखा, उसने मुझे देखा, मुझे हंसी आ जाती थी कि और ये सोच रहा है कि इस पे हंस रहा है, कमीनों कुछ मार के फेंकता है। क्या होता है, हम दोनों हम इतना जानते हैं ना एक दूसरे को, कहीं ये दूर बैठा है या मैं इधर बैठा हूँ, तो हम इतनी सी स्माइल निकलती है, हंस पड़ते हैं। तो वो एक लाफ्टर वाला जो होता है ना कि वो चालू हो जाता था, लेकिन हाँ इट वाज फन। तो फिल्म के बारे में इन शॉर्ट अगर व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे इन योर ओन स्टाइल, जो फिल्म है आप तीनों की अलग अलग स्टाइल, तो उस तरीके से कैसे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? कुछ विल स्टार्ट विद सनी। भाइयों बहुत दुख से हैं, बहुत कुछ आपने रिलेट करना है, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आइए और जरूर आना। प्यार का पंचनामा 2 16 अक्टूबर। अधिक प्यार का पंचनामा 1 आपने देखी थी, और बहुत दुख दर्द आपने आपस में बांटे थे, और बहुत मज़ा आया था कि कोई तो कुछ लोग हैं कुछ ऐसा बता रहे हैं जो हमारी रियल लाइफ में होता है। सेकंड पार्ट के साथ भी ये होने वाला है, सेकंड पार्ट में आप और ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं, आप लोग को लगने वाला है अरे यार ये भी तो होता था मेरे साथ, ये नहीं देखा था पहली वाली में। तो सेकंड पार्ट के साथ ये बहुत होने वाला है कि सब लोग ये देखने वाले हैं कि ओ शिट ये मेरी वाली है, नहीं ये इसकी वाली है, भाई तेरी वाली ऐसी है। तो सेकेंड पार्ट प्लीज़ देखिएगा, प्यार का पंचनामा 2, एंड प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। आई थिंक अगर आप लोगों के लाइफ में वो एक रिलेशनशिप वैसा आया है जहां आप लोगों ने बाय द एंड बोल दिया कि बस बहुत हो गया, तो आप लोग डेफिनेटली इस फिल्म से मतलब कनेक्ट करोगे ही करोगे, बिकॉज हमने वो इश्यूज इस बार एड्रेस किए हैं जो यूजुअली हम रिलेशनशिप में एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ गर्लफ्रेंड वो चीज़ लेके नहीं आते डेली बेसिस पे, क्योंकि लगता है यार अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही है क्यों बिगाड़े, तो उस चक्कर पे फिर एक दिन फटता है आदमी या फ्रॉम द गर्ल साइड। तो आपको वो चीज़ डेफिनेटली देखने मिल जाएगी। तो कई सीन्स में आई एम श्योर हर लाइन या सीन में आपको ऐसे देखते देखते आप अपनी गर्लफ्रेंड को देखोगे कि अच्छा ये वाला तो तुम करती हो, या यू विल लुक एट योर बॉयफ्रेंड एंड से ओके यू डू दिस। सो इट इज अ फिल्म दैट यू विल कनेक्ट टू, सो आई थिंक यू शुड जस्ट कम वॉच एंड हैव फन, सिंपल। इवन इनफैक्ट हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप सब ऑलरेडी इससे इतने रिलेटेड हैं कि प्यार का पंचनामा का एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, जो लोग एकदम देखने वाले हैं प्यार का पंचनामा 2। तो आई एम श्योर कुछ ऐसा कुछ नया हम नहीं बोलने वाले, तो आइए फिल्म में देखेंगे, पॉपकॉर्न खाइए
और ब्रेकअप करके जाइए। पॉपकॉर्न से मुझे याद है, अपनी गर्लफ्रेंड को पॉपकॉर्न खिला दीजिए ताकि वो कुछ बोल ही नहीं, वो पूरे टाइम ना बस खाती रहे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बस बोल नहीं पाएगी। आप कंसंट्रेशन के साथ बस देखते रहिए, ये मेरी लाइफ है। चलिए इसी के साथ प्यार का पंचनामा 2। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।